Welcome to Math Concept, the aim of excellence. We discuss about chapter number 7, coordinate geometry of class 10th. What do you mean that coordinate geometry? Actually में होती क्या है coordinate geometry? Coordinate geometry we are used for a point या कोई भी एक point locate in Cartesian plan है, locate in कार्टेशियन प्लान, यानी कि उस पॉइंट की लोकेशन डिस्क्राइब करने के लिए, उस पॉइंट कौन सी लोकेशन पे उसको डिस्क्राइब करने के लिए अपन कार्टेशियन प्लान का यूज़ करते हैं. दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, वी आर यूजिंग द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, इन ए प्लान, अन्य प्लान का मीन्स क्या हो जाएगा कि कोई भी अगर एक प्लान समतल पे दे रखा है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए अपने पास दो डिस्टेंस चाहिएगी कि वो दोनों तरफ से कितना दूर है, देन वी आर यूजिंग द कार्टेशियन plan. What do you mean that Cartesian plan? In the last class 9th we are discuss about the Cartesian plan, coordinate, abscissa, ordinate, origin point, quadrant, x axis, y axis. So we have a quick review for this chapter. So we are now that if a horizontal and vertically number line intersect at a midpoint, horizontal and vertical number line intersect at origin point, अब origin point क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा. तो मिड पॉइंट origin का क्या होता है, 0 0. horizontal number line it's called x axis, horizontal number line it's called x axis, vertically number line it's called y axis, vertically number line it's called y axis, vertically number line it's called y axis. Both number lines are intersect at O point, so we can say that it's the O means origin, okay. Then we next in the x axis, and so we can say that it's OX the represent the positive integers, OX dash the represent the negative integers, okay, as it is OY present the positive integers and OX dash OY dash represent the negative integers. We are some points is the positive number, in this side negative, inside positive, this side negative number. So that's called Cartesian plan. Cartesian plan generally we are using in the graph paper. If suppose that a point in this part, a point in the Cartesian plan, so that's part यानी कि 4 line, यानी कि both line horizontal and vertical number line Cartesian plan divide into 4 equal part, that's called quadrant, and it's anti-clockwise, 1 2 3 and 4. A point located in the Cartesian plan, we have the two coordinates x and y, First is x. What do you mean that x? It's called abscissa, abscissa represented by a distance from y axis. Abscissa it's called a distance from y axis, and distance from x axis is called ordinate, and it's represented by y. Distance from y axis it's called the abscissa represented by x. Distance from x axis it's called ordinate, and it's represented by y. इनको x और y होते हैं, और x और y का जो पेयर होता है x and y, that's called coordinate of any point. So next step in the first, second, third and fourth quadrant we are discussing in the 9th class कि both if any point in the first quadrant that are positive, second quadrant negative and positive, third quadrant both are negative, and the fourth quadrant x is negative and y is positive. If any point locate on the x axis, that means the value is x and 0. If any point locate in the y axis, that value is 0 and y. That is the general introduction of the chapter 7 coordinate geometry. This basis of we are using the MCQ filling blanks type question. In the 10th grade we are discuss about distance formula. In the 10th grade we are discuss about distance formula. What do you mean that distance formula? In the grade, distance formula, section formula and area of triangle. Distance, section and area of triangle. The first thing is a distance formula. What do you mean that distance? We know that distance we are using for some 2 points.
कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच की दूरी क्या होगी, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, देन वी आर यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला इन द कार्टेशियन प्लेन. सपोज दैट इन द कार्टेशियन प्लेन वी हैव 2 पॉइंट, वी हैव 2 पॉइंट P एंड Q, वी हैव 2 पॉइंट P एंड Q. कोई भी कार्टेशियन प्लेन दे रखा, उसके अंदर अपने पास 2 पॉइंट दे रखे हैं P एंड Q. वो 2 पॉइंट हो सकते हैं या 3 पॉइंट हो सकते हैं. तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, देन वी आर यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला. अब ये फार्मूला बना कैसे, इन फार्मूले का यूज कैसे किया जाता है, ये फार्मूला क्या होता है, तो वो देखिए. वी नो दैट एट इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये हो जाएगा ओरिजिन, दैट x dash, its y axis y and y dash. If suppose that a point the P in the first coordinate, अब कोई भी पॉइंट P कार्टेशियन प्लेन के अंदर है तो अपने पास 2 थिंग्स चाहिएगी, कोऑर्डिनेट्स. क्या चाहिएगी अपने को, कोऑर्डिनेट. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट xy एंड सेकंड कोऑर्डिनेट xy. ओके, अब अपने पास 2 पॉइंट है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट को क्या कहेंगे, x1 y1 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट्स को क्या कहेंगे, x2 y2. x1 y1 x2 y2. लेट्स डिस्क्राइब द फॉर्मूला. फॉर्मूला ये होता है कि जब भी कोई फॉर्मूला क्रिएट होता है डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, तो स्क्वायर रूट यूज हो जाएगा. सेकंड थिंग, इनके जो बीच का फॉर्मूला वो पूरा हो जाता है कि डिस्टेंस इक्वल टू, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज अंडर रूट स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन एब्जिका, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन एब्जिका. जो चीज़ बोल रहा हूँ वही चीज़ रिप्रेजेंट करेंगे. अब एब्जिका क्या होती है कि सर एब्जिका यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंट बाय एक्स. सो वी कैन से द डिफरेंस बिटवीन एब्जिका यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट. तो ऑर्डिनेट यानी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू. ये पी क्यू के डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. लेट्स वी आर यूजिंग द सम एग्जाम्पल फॉर दिस स्पेस क्वेश्चन. इसका फॉर्मूला कैसे यूज होता है, इसके फॉर्मूले कहाँ कहाँ होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. सो सपोज दैट इफ 2 पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन A एंड B, in the Cartesian plane A and B, coordinate of A is 5 and 3, coordinate of A is 5 and 3 and coordinate of B is -5 and 2, -5 and 2. Of course we know that coordinate geometry के अंदर जो coordinates होते हैं वो हमेशा अपने पास क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं. वो क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं. तो इंटीजर्स नंबर होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. अब इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है तो ए बी इज इक्वल्स टू. अब देखो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए. तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x1 y1, coordinate of A is x1 y1, coordinate of B is x2 y2, coordinate of B is x2 and y2. Then AB is equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. Now what do you mean that value of x2? कि वैल्यू ऑफ x2 इज -5, वैल्यू ऑफ x2 इज -5. तो ब्रैकेट -5 माइनस x1 वैल्यू इज 5, x1 वैल्यू इज 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ y2 इज 2 माइनस वैल्यू ऑफ y1 इज 3, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर. ओके, लेट्स कंटिन्यू. सॉल्व द ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 5 -10, तो -10 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 -1 का होल स्क्वायर. दैट स्क्वायर ऑफ -10 इज 100. क्या हो जाएगा, 100 प्लस 1, तो अंडर रूट अपने पास आ जाएगा 101. यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 101. ये होता है डिस्टेंस फार्मूला. डिस्क्राइब किया जाता है कोई भी पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर तो ऑफकोर्स उसके कोऑर्डिनेट होंगे. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x1 y1, coordinate of Q is x2 and y2, and distance between any 2 point PQ is equals to under root x2 minus x1 whole square, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 होल स्क्वायर. तो ये होता है डिस्टेंस फार्मूला. अब डिस्टेंस फार्मूला के बेस पर है अपने पास एक्सरसाइज 7.1. एक्सरसाइज 7.1 वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट
अपने पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई भी पेयर ऑफ पॉइंट्स दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। अपने पास दो पॉइंट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ऑफ एनी पॉइंट 2, 3 एंड 4 एंड 1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के सपोज दैट ये पॉइंट दे रखा है ए, ये पॉइंट दे रखा है बी, देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 2 एंड 3, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 2 एंड 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 4 एंड 1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 4 एंड 1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, इनके बीच में क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ऑफ कोर्स वी कैन से दैट इट्स x1 y1, इट्स x2 y2। अब अपने पास जो पॉइंट फर्स्ट आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 एंड y1, जो पॉइंट सेकंड है दैट्स कॉल्ड x2 एंड y2। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन की फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेट्स इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, व्हाट द वैल्यू ऑफ x2, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 4, तो 4 माइनस x1 की वैल्यू 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ क्यों होती है x2 माइनस x1, क्योंकि वी नो दैट सब्ट्रैक्शन जब भी होता है तो ग्रेटर देन डिजिट माइनस स्मॉलर डिजिट, तो ऑटोमेटिकली x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2 1 माइनस 3। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। 4 माइनस 2 इज 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो इक्वल टू अंडर रूट 8 एंड अंडर रूट 8 वी राइट इन द फॉर्म ऑफ 2 रूट 2। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी जी इज इक्वल्स टू 2 रूट 2। क्या थी अपने पास, कोई भी दो पॉइंट दे रखे थे 2, 3 एंड 4, 1। अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेट्स वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल्स टू 2 रूट 2। क्वेश्चन सेकंड पेयर इज गिवन दैट -5, 7 and -1 and 3. So find the distance between -5, 7 and -1 and 3. So we suppose that it's the point P and it's point Q. The coordinate of P is x1, y1. Coordinate of Q is x2, y2. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेट्स PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट व्हाट द वैल्यू ऑफ x2, सर x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 माइनस फॉर्मूले का अच्छे से देखना, इस चीज़ के अंदर बड़े से कन्फ्यूजन वाली चीज़ होती है। अपने पास इंटीजर्स को लेके और माइनस प्लस की जो टेबल्स होती है उस चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। तो x2 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू -1 माइनस फॉर्मूला x1 की वैल्यू -5, x1 की वैल्यू -5 का बिग ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर। ओके लेट्स सॉल्व। -1 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 इज -4, 3 माइनस 7 इज -4 होल स्क्वायर। लेट्स बिगिनिंग 5 माइनस 1 ऑफकोर्स माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 1 इज 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 16 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 वी राइट इन द फॉर्म ऑफ 4 रूट 2। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल्स टू 4 रूट 2, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 टू जा 32। तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल्स टू 4 रूट 2। क्वेश्चन ऑफ थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिवन दैट ए बी एंड -a and -b। तो कोऑर्डिनेट ऑफ इज गिवन दैट पॉइंट ए बी एंड -ab। तो सपोज दैट इट्स द पॉइंट x एंड इट्स पॉइंट y, इस पॉइंट x एंड इट्स पॉइंट y। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x इज x1 y1। लेट्स बी कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए इनको थोड़ा सा चेंज करते लेते हैं। ये हो जाएगा अपने पास a और ये हो जाएगा b। तो कोऑर्डिनेट ऑफ b इज x2 एंड y2, कोऑर्डिनेट ऑफ b इज x2 एंड y2।
कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x1 एंड y1. लेट्स टू बी कंटिन्यू. सो अपने पास क्या चीज़ रहेगी, डिस्टेंस फार्मूला. तो ए बी इज इक्वल्स टू कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. इट्स द इजी. Equal to under root. What the value of x2? So we can say that value of x2 is minus a. तो minus a minus x1 की वैल्यू a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू माइनस b. तो माइनस b माइनस y1 की वैल्यू b का होल स्क्वायर. देन अंडर रूट. अब a माइनस a क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस a एंड माइनस a माइनस माइनस प्लस. तो अंडर रूट माइनस 2a का होल स्क्वायर as it is minus 2b का होल स्क्वायर. सो वी कैन से दैट 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर इज a स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 स्क्वायर 4b स्क्वायर. लेट्स कॉमन क्या आ रहा है भाई इन दोनों में, देखो कि कॉमन आ रहा है ऐसा 4, तो पीछे क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 4 क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑफकोर्स वी कन्वर्ट इनटू स्क्वायर रूट. तो अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2. तो 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट ए बी एंड माइनस ए एंड माइनस बी इज 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये यहीं से क्वेश्चन क्लियर होता है. माइनस माइनस प्लस a 2a a b plus b 2b. 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4b लेट द कॉमन. देन ब्रैकेट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. देन 2 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2. तो a b इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. Find the distance between point 0 0 and 36 and 15. Then next one is can you find the distance between two town. तो let's suppose that अपने पास जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 0 and 36 and 15, ये किन्हीं दो टाउन के बीच की डिस्टेंस है. तो फर्स्ट टाउन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 0 एंड अनदर दे रखा है 36 and 15. तो लेट्स एट द पॉइंट इज A एंड इज अनदर टाउन इज B. तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी. तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएंगे x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी हो जाएगा x2 y2, कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो जाएगा x2 y2. तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग के डिस्टेंस फार्मूला यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो ए बी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ x2 इज 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर. ओके, देन 36 माइनस 0 इज 36. तो स्क्वायर ऑफ 36 इज 1296 प्लस 15 minus 0 is 15. Then square of 15 is 225. तो 225. Then sum of these 1296 plus 225 is 1521. 1521. तो अंडर रूट 1521. सो वी कैन से दैट 15 इज द नियरेस्ट वैल्यू. तो ए बी इज इक्वल्स टू 39. ए बी इज इक्वल्स टू 39. 1520 in the perfect square of 39. So we can say that the distance between AB is 39. And can you find the distance between two town. अब कोई भी दो टाउन है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा किनके बिटवीन होती है, किलोमीटर में. उनकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर. तो अब सपोज दैट ए बी इज टाउन, ए बी इज टू टाउन्स. तो डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन इज 39 किलोमीटर. डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन इज 39 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर थर्ड. डिटरमाइन इफ अ पॉइंट 1 5 2 3 and -2 and -11 आर कोलिनियर. अपने को प्रूफ करना है कि जो तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं अपने पास 1 5 2 3 and -2 and -11 आर कोलिनियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन दैट कोलिनियर. कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि कोलिनियर यानी कि इफ यानी 3 पॉइंट्स लाइज बिटवीन या लाइज ऑन ए
लाइन, 3 पॉइंट्स लाइज ऑन ए लाइन, कोई भी 3 पॉइंट्स है वो अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन तो दैट्स कॉल्ड कोलिनियर, दैट्स कॉल्ड कोलिनियर। अब सपोज करो कोई भी 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, वो क्या है, कोलिनियर, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कंडीशन लगती है, कुछ ना कुछ एक एप्रिशिएट आइडेंटिटी लग जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, आप खुद ऑब्जर्व करो कि सर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, यानी कि कोई भी कोलिनियर पॉइंट हो गए। अब वो पॉइंट ए बी सी हो सकते हैं या फिर बी सी ए हो सकते हैं या फिर ए बी और सी हो सकते हैं, वो कोई भी 3 कोलिनियर पॉइंट हो सकते हैं। कोलिनियर का मतलब ही ये होता है तीनों ही पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर, 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, वो कोई भी 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे हो तो दैट्स कॉल्ड कोलिनियर, दैट्स कॉल्ड कोलिनियर। ओके, और नॉन कोलिनियर ये क्या हो जाएगा कि जो तीनों ही अलग अलग डिस्टेंस दे रखे हुए ऐसे, तो नॉन कोलिनियर को इनको ज्वाइनिंग करते हैं तब क्या बनता है अपने पास, ट्रायंगल बन जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मस्त क्या हो जाएगा कि तीनों ही पॉइंट एक दूसरे के साथ क्या दे रखे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में दे रखे हैं। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए अपने पास मैंने एक चीज़ लिखी कि ए बी प्लस बी सी, यानी कि सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू थर्ड पॉइंट। तो सपोज करो ये अपने पास 3 पॉइंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं। इन तीनों को ही मैं ज्वाइन कर देता हूँ कि सपोज करो पहले ये 2 पॉइंट हो जाएंगे, तो ये हो गया ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज x2 y2। तो फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो ए बी की डिस्टेंस अपने पास क्या हो जाएगी कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू अंडर रूट व्हाट द वैल्यू ऑफ x2 इज 2 माइनस x1 की वैल्यू 1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 5, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो वी कैन से दैट अंडर रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5। So let's we solve the distance between BC, distance between BC, तो BC is equals to under root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो B के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 y1, C के कोऑर्डिनेट x2 y2। लेट्स, तो BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट वैल्यू ऑफ x2 इज -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 2 4, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 3 इज 14, तो स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 प्लस स्क्वायर ऑफ 14 इज 196, 196। तो डिस्टेंस बिटवीन BC इज इक्वल्स टू 212, तो BC की डिस्टेंस कितनी आ गई, 212। अपने पास AB की डिस्टेंस आई √5, BC की डिस्टेंस आ गई अंडर रूट 202। सो लेट्स वी डिस्कस फाइंड अबाउट AC। अब किन के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करते हैं अपन, A एंड C के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 1 and 5, कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 1 and 5, कोऑर्डिनेट ऑफ C इज -2 and -11, कोऑर्डिनेट ऑफ C इज -2 and -11। तो A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 y1, तो B के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन AC इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस बिटवीन AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पुट द वैल्यू, x2 की वैल्यू हो जाएगी -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हो जाएगी -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू ऑफ y1 इज 5, तो अंडर रूट माइनस माइनस प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -16 का होल स्क्वायर। तो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9
प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 256। ओके, सम ऑफ 256 प्लस 9 इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगी 265। So we can say that distance between AB is equals to under root 5, distance between BC is equals to 212, distance between AC is equals to 265। तो कोलिनियर की क्वालिटी ये होती है कि जब भी कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो 2 पॉइंट्स की सम होगी वो तीसरे पॉइंट के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तीसरे पॉइंट के क्या नीचे है, इक्वल आ जाएगी। तो √5 इज ए इरेशनल नंबर, 202 एंड 265 किन्हीं को भी सम करने पर वो किसके इक्वल नहीं हो रहा है, 265। तो सो वी कैन से दैट 0.15, 2, 3 एंड -2 एंड -11 इज नॉट ए कोलिनियर पॉइंट, नॉट ए कोलिनियर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4, check whether 5 and -2, 6 and 4 and 7 -2 are the vertex of a isosceles triangle, vertex of a isosceles triangle। तो what do you mean that isosceles triangle? Of course isosceles triangle का मतलब क्या होता है, पहले तो आप उसी चीज़ को समझिएगा कि which triangle only for 2 sides are equal। कोई भी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो दैट्स कॉल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल, दैट्स कॉल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो सपोज दैट ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 5 and -2, कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 5 and -2, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 6 and 4, कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 7 and -2, कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 7 and -2। ये अपने को प्रूफ करना है कि 5 -2, 6, 4 और 7 -2 इज द वर्टेक्स ऑफ ए आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टेक्स है उसके प्रूफ कैसे करेंगे अपन कि सर डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB, BC और CA। अपन क्या करेंगे, AB, BC और CA सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर उनमें से कोई 2 वैल्यू इक्वल है तो ऑफ कोर्स वी कैन से दैट इट्स द आइसोस्केलस triangle। Reason in the isosceles triangle 2 sides are equal to each other। तो first thing we find the AB, we find the AB। तो AB के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, सॉरी AB के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5 और -2। तो A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला AB इज इक्वल्स टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेट्स पुट द वैल्यू AB। तो A के कोऑर्डिनेट 5 और -2, B के कोऑर्डिनेट 6 और 4। तो x2 की वैल्यू 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y2 की वैल्यू -5। अब देखना यहाँ पे y2 की वैल्यू 4 माइनस फॉर्मूले का y2 की वैल्यू -2, तो माइनस +2 का होल स्क्वायर। लेट्स सॉल्व द एग्जांपल। 6 - 5 इज 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 इज 6, तो 6 का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल्स टू AB इक्वल टू √1 + 36 इज इक्वल्स टू √37। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल्स टू √37। इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, √37। नेक्स्ट थिंग, डिस्टेंस बिटवीन BC, डिस्टेंस बिटवीन BC, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू क्या है अपने पास, अब देखो यहाँ पे BC इज इक्वल्स टू x2 - x1। तो B कोऑर्डिनेट पहले आ रहा है, तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 y1। ये C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। एक्चुअली ये डिपेंड करता है अपन पहला कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, BC, तो B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1, C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। रीज़न क्योंकि अपन डिस्टेंस किसके बिटवीन फाइंड कर रहे हैं, BC के डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो x2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 माइनस y1 का फॉर्मूला हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो BC इज इक्वल्स टू √7 - 6 -1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 36। तो BC इज इक्वल्स टू √37,
37। सो अपन के पास क्या आ गया, अंडर रूट 37 भी आ गया। अब अपन कह सकते हैं इट्स आइसोस्केलस ट्रायंगल, क्योंकि अपने पास दो साइड इक्वल होगी, बट अपने को थर्ड साइड इक्वल लाके उनको वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो अपन फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए सी, डिस्टेंस बिटवीन ए सी। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन ए सी क्या हो जाएगा, तो ए के कोऑर्डिनेट, अब देखो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 y2, ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 y2। तो हो जाएगा, चलो भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, बी सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। तो पुट द वैल्यू अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या अपने पास 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, y1 की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे +2 कैसे आ गया, फॉर्मूले का माइनस, y1 की वैल्यू दे रखी थी माइनस, तो माइनस के अंदर -2, तो माइनस माइनस प्लस 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो 2 माइनस 2 इज़ 0, तो 0 का स्क्वायर अंडर रूट क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4। तो ए सी इक्वल टू ए सी इज इक्वल्स टू 2। तो अब अपने पास क्या आ गया कि सर ए बी इज इक्वल्स टू √37, बी सी इज इक्वल्स टू √37 एंड ए सी इज इक्वल्स टू 2, ए सी इज इक्वल्स टू 2। सो वी कैन से दैट इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए या ए सी। सो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ए बी सी इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, ए बी सी इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। ए बी सी कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोस्केलस। सो वी कैन से दैट 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 इज ए वर्टेक्स ऑफ ए आइसोस्केलस ट्रायंगल। थैंक यू।